Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about green engineering. Earlier we tried to explore what kind of methodologies we can adopt, in which we also studied energy conservation, water conservation, and then how to reduce water pollution, how to reduce air pollution, how to overall reduce waste, solid waste being produced. Today our focus is on green engineering. So it is a continuation, and basically it is going to facilitate us in different design aspects, like in our product design and in our process design. So normally in an industry, we are concerned with two major things which are taking place. First of all, we are focusing on the product. Secondly, we are taking the help of different industrial processes which are taking place. So in that regard, we are going to design those products and those processes in such a manner that we achieve a cleaner production. So what is actually green design? Environmental impact occurs when materials accumulate in biosphere. Management of material flow is critical for efforts to material conservation. One way to manage the material flows to avoid accumulation, close the material cycles of production and consumption systems. Follow the concept of natural systems, natural balancing, and biosphere. Existing situation is in one way flow of material and economy from raw materials to industrial or municipal waste. Now, this is the situation which is existing in our system, and we are talking from day one that what is our major problem. Our major problem is the continuous addition of contaminants, which is continuously adding up the pollution load. Pollution load means that our contaminant is continuously being added up in our soil, in our wastewater, in our waters, in our air. So there is a continuous disposal. There is even after treatment of wastewater, the contaminant is not completely discharged or eliminated from the system, but it exists in the system, but it changes its shape. अब आप कंसिडर करें कि हमारे जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं जो कि हम वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, इन्वायरमेंटल सिस्टम के अंदर वो कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं. वी आर नॉट एलिमिनेटिंग दोज कंटेमिनेंट्स, बट वी आर चेंजिंग दैम. हमने एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया. पहले इंडस्ट्री में थे, वहाँ से हमने उनको ट्रीटमेंट प्लांट में शिफ्ट किया. ट्रीटमेंट प्लांट्स में उनको हमने सेपरेट करके तो फिर हमने उनको लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया. सो वी आर स्टिल कीपिंग दैट कंटामिनेंट इन द सिस्टम. द इशू इज़ वी नीड टू रिड्यूस दिस लोड. हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. बट एज अ रिज़ल्ट वी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लोड. सो वो कैसे हमने बेहतर करना है, उसके लिए ग्रीन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है. So please understand what is the basics of this basic objective of green design is, ताकि हम जो pollution load है जो कि सिस्टम के अंदर हम शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी से तीसरी जगह लेके जाते हैं, बट इट रिमेन्स इन द सिस्टम. इसको हम सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, बट इट इज़ प्रेजेंट. अब हमने उस लोड को रिड्यूस करना है. वो कैसे रिड्यूस करना है? नंबर वन, उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करें.
ताकि पोल्यूशन जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है, हेल्थ के ऊपर आ रहा है, उसको हम किसी तरह से बाइफरकेट कर सकें, उसको हम किसी तरह से रिड्यूस कर पाएँ। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब एक और ऑप्शन ये है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो इतने एफिशिएंट हो जाएं कि हमारी जो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है वो स्लो डाउन हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो जो हमारा इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो उसकी जगह हम थोड़ा रॉ मटेरियल यूज़ करके बेहतर प्रोडक्ट, ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट, जिसकी एफिशिएंसी पिछले प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है और उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी लेस है, उसको हम अडॉप्ट करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सो आप देखिए कि पहले हमारे जो नॉर्मल ट्रेंड था, जो हमारे मशीनरी थी या जो हमारे कंप्यूटर्स थे, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स थे, जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस थे, सेल फ़ोन की बात कर लें, टेलीफ़ोन की बात कर लें, कंप्यूटर्स की बात कर लें, लैपटॉप्स की बात कर लें, ऑटो मोबाइल्स की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की बात कर लें। किसी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करें, इनिशियली वी हैड अ ह्यूज स्ट्रक्चर। हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर के ऊपर कंस्टिट्यूट करते थे और उनका मटेरियल कंजप्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा होता था। सो वी वर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल, और उसके बाद हमारा जो मटेरियल डेवलप हो रहा है, इट इज़ अगेन अ ह्यूज प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को एक तो डिस्पोज़ करना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, सेकेंडली उसकी एफिशिएंसी जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और जो एंड प्रोडक्ट जो उसका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो 3 हमारे मेजर सेक्शंस हैं जिनमें हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट की डिस्पोज़ल इटसेल्फ आफ्टर इट्स कंजम्पशन, फिर जो मटेरियल की कंजम्पशन है इनपुट मटेरियल के तौर पे, तीसरा जो है वेस्ट की प्रोडक्शन। ह्यूज वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज इंटेंसिव रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन। ये एक एग्जांपल देना चाह रहा था मैं आपको कि हमारा डिज़ाइन से क्या मुराद है, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग, ग्रीन इंजीनियरिंग की टर्म के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो इतने जो हैवी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, इतने जो हैवी अप्लायंसेस बनाते हैं, और एफिशिएंसी के टर्म में अगेन वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं, बट मटेरियल कंजम्पशन के लिए इतने ज़्यादा मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है उसका, एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट जो है उसका प्रोड्यूस हो रहा है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर ग्रीन इंजीनियरिंग सिस्टम। वी नीड टू डेवलप इको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। ग्रीन डिज़ाइन इज़ बेसिकली इको डिज़ाइन, जिसमें हमने सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। सेकेंडली हमने उसको इकोनॉमिकली भी ऑब्ज़र्व करना है कि मटेरियल की इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना आए, मटेरियल कम से कम यूज़ हो, और उसकी एफिशिएंसी अलबत्ता बेहतर हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। एंड देन जो प्रोसेस है, जो उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो भी हम चाहते हैं कि इतना एफिशिएंट हो कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। ये है फंडामेंटल बेसिक्स, ये है ऑब्जेक्टिव ग्रीन इंजीनियरिंग की स्टडीज़ का। और हमारा टारगेट इसमें क्या है, इको डिज़ाइन। इको डिज़ाइन से क्या मुराद है, सस्टेनेबल डिज़ाइन, और वो डिज़ाइन ऐसा होगा जो कि हमें एनवायरनमेंट को भी लुक आफ्टर करेगा, एंड एट द सेम टाइम वो जो हमारे इकोनॉमी है उसको भी कैटर फॉर करेगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन डिज़ाइन। We are heading towards sustainable development requires change in these flow patterns। हमने इस जो फ्लो पैटर्न है जो कि सिंगल डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वी आर ओनली कंज्यूमिंग द मटेरियल बट वी आर नॉट रिसाइकलिंग द मटेरियल, वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन एज वेल एज द वेस्ट फॉर्मेशन, वेस्ट जनरेशन। तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, वी आर गेटिंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट। अब इसको हमने किस तरह से लुक
लुक आफ्टर करना है, वी नीड टू कैटर अ क्लोज्ड लूप्स। अब ये एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्लो चार्ट बनेगा, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ, जो प्रोसेस टेक प्लेस हुआ, जो एंड प्रोडक्ट बना और जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। इट इज़ वन डायरेक्शनल। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, कि हमारा जो मटेरियल है वो कम से कम यूज़ हो और बहुत सारा मटेरियल विद इन द सिस्टम रिसाइकल हो, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल रिड्यूस हो। सेकेंडली उसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो, ताकि हमारा जो ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर लोड है वो कम से कम रहे। अभी ये एक आपके लिए एग्जांपल है। आप अगर इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, जो भी हमने बात की है वन डायरेक्शनल फ़्लो की, तो जो कन्वेंशनल डिज़ाइन हम करते रहे हैं प्रोसेस का और प्रोडक्ट का, दोनों के लिए हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो वन डायरेक्शनल है। इट इज़ गोइंग टू वर्क इन वन डायरेक्शन। उसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है, then we are consuming that raw material in the process unit, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एनर्जी की ह्यूज अमाउंट जो है कंज्यूम हो रही है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। देन व्हाट एल्स वी आर गेटिंग प्रोडक्ट यूज़ के लिए अगेन एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है फ्रॉम आउट सोर्स। ये एक और सोर्स से हम एनर्जी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विद इन द सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, बल्कि एनर्जी की अगर आप देखें सप्लाई, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द दिस वन डायरेक्शनल फ्लो। एनर्जी हमारे पास एक और सोर्स से आ रही है, जो कि एक एडिशनल लोड को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट वी आर गेटिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द एंड। दिस इज़ द कन्वेंशनल अप्रोच जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हम जा रहे हैं ग्रीन डिज़ाइन की तरफ। उसमें हमारा टारगेट क्या है, टू मैक्सिमम क्रिएट अ क्लोज्ड लूप, मटेरियल्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एनर्जी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एनर्जी की प्रिजर्वेशन एट द सेम टाइम। हमने एनर्जी को सेव भी करना है। नाउ दिस मटेरियल एफिशिएंसी विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कि एफिशिएंट हो। पहले जो हमारे मटेरियल थे वो ह्यूज क्वांटिटी में ज़रूर थे, बल्कि मटेरियल ज़रूर थे, एफिशिएंसी में लेकिन वीक थे। अब हम चाहते हैं कि एफिशिएंट मटेरियल जो हैं वो हम सर्च आउट करें, रिसर्च करें, डिज़ाइनिंग करें, ताकि हम मैक्सिमम जो है वो मटेरियल की कंजम्पशन की तरफ आए। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी एफिशिएंसी विल बी इन्वॉल्व्ड। ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जो कि मैक्सिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा हो, और जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो आप ऑब्ज़र्व करें, इट शुड बी एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की जो लूप होल्स हैं, जो एनर्जी की डेफिशिएंसीज़ हैं, वो कम से कम होनी चाहिए। देन हेडिंग टवर्ड्स वेस्ट प्रिवेंशन, हमारा जो टॉक्सिसिटी लेवल है एक तो वो रिड्यूस हो, एट द सेम टाइम क्वांटिटी भी रिड्यूस हो, और वो उसी सूरत में होगी अगर हमारे जो मटेरियल है वो एफिशिएंट होगा। उस सूरत में ही हमें यहाँ पे वेस्ट प्रिवेंशन जो है वो हम उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। सो अगर हमारा मटेरियल एफिशिएंट है तो हमारा वेस्ट जो है वो मिनिमम होगा, वॉल्यूम क्वांटिटी वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी, एंड टॉक्सिसिटी लेवल वाइज भी। दिस इज़ द अचीवमेंट ऑफ आवर ग्रीन डिज़ाइन, इको डिज़ाइन। देन हमारा जो प्रोडक्ट यूज़ है वो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय अ रिसाइकल प्रोसेस। वो एक क्लोज्ड लूप के अंदर होना चाहिए, एंड आवर डिज़ाइन फॉर रीयूज़ जो है वो उसके अंदर नज़र आना चाहिए। आवर सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो कि हम डंप करने जा रहे हैं वो रिसाइकल करे हमारे मोस्ट ऑफ द मटेरियल को, ताकि हम उसको विद इन द प्रोडक्ट यूज़ करें, विद इन दी प्रोसेस जो है वो यूज़ करें, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम उसको यूज़ करें। सो दिस इज़ दी डिज़ाइन ऑफ सेफ़ लैंडफिल, कंपोस्टिंग भी करें, इंसिनरेशन भी अडॉप्ट करें, इन्वायरमेंट को जितना सेव कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी लेवल को जितना रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको अडॉप्ट करें। दीज आर द टारगेट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर ग्रीन डिज़ाइन, ग्रीन इकोनॉमी।
So green eco design actually. Now how to achieve sustainability and development of products, उसमें यह है कि adoption of cleaner production concept जो है वो हमें चाहिए. उसमें green engineering आएगा, green design आएगा, sustainable product design आएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन डिज़ाइन आएगा. हमने शुरू में बात की थी कि हमारा कंसर्न क्या है, दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोसेस का डिज़ाइन. प्रोडक्ट वो जो कि हम एंड पे हासिल करने जा रहे हैं, एंड प्रोसेस वो जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट को अचीव करना है. दोनों की एफिशिएंसी हमारे लिए मैटर करती है. ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जो कि बाद में एक्सपेंसिव हो, जिसको रन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी आउटसोर्स करनी पड़े, ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़े, और उसको वेस्ट करने में अगेन हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँ. और इवन दो कि हम उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको बेहतर कर लें, एफिशिएंट कर लें, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमारा इतना सक्सेसफुल ना हो, इतना एफिशिएंट ना हो, तो दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ आर एनर्जी एफिशिएंट एंड एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड लूप. क्लोज्ड लूप की क्या एफिकेसी है, क्या उसकी यूटिलाइजेशन है कि हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट के तौर पे डिस्पोज नहीं कर रहे हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं एज अ इनपुट मटेरियल. So focus is on efficient use of material and energy, reduction of waste toxicity and reuse, recycling of the material. ये वही बातें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, और यही हमारा टारगेट है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ ऑन एफिशिएंट यूज़. इसको आप देखें, ये वो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसकी तरफ हमने जाना है, जो कि हमने क्लोज लूप ऑफ मटेरियल जो है उसके थ्रू हमने इसको अचीव करना है. देन टूल्स ऑफ ग्रीन इंजीनियरिंग क्या है, इको डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ फॉर इन्वायरमेंट है. इट लीड्स टू R&D टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो हमें मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करके दे. ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सक्सेस है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली हो. देन उसकी जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक यूज़ रिडक्शन हो, कंसिडरिंग द इंटरनल केमिकल रिस्क एंड पोटेंशियल. और इसमें एक्सटर्नल पोल्यूशन रिस्क को उसको भी लुक आफ्टर करें. एंड देन एट द प्रोसेस एंड वर्कर्स लेवल लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट की जाए. लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है ना, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है. इसको हम इंशाल्लाह इन द कमिंग 2 to 3 वीक्स लेटर हम इसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे. लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे व्हाट इज़ लाइफ साइकिल असेसमेंट. लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, कि इस प्रोजेक्ट से कौन सा जो हमारा इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, और उनकी क्या मिटिगेशन मेजर्स हम ले सकते हैं, किस तरह से हम EIA के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर हम ना EIA कंडक्ट करते हैं. लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है ये डील करती है मटीरियल्स की. कोई भी मटेरियल जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, उसकी हम सबसे पहले लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हैं. उसमें हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जो कि मटेरियल के साथ लिंक्ड हैं. उसमें मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी, और उसकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो वाली जो करैक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ें लाइफ साइकिल असेसमेंट में आती हैं. उसकी जो डिस्पोज़ल है वो इसमें आती है. सो ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाद में हमारे लिए डिस्पोज़ल के लिए प्रॉब्लम बने. सो ये भी हमने देखना है. द प्रोडक्ट मस्ट बी एफिशिएंट एनफ कि वो हमें डिस्पोज़ल के वक्त प्रॉब्लमेटिक ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, रिसाइकलेबल हो, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ किया जा सके.
दीज वर रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं जो कि कॉरपोरेट लेवल की, जिसमें हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट उसको कंसिडर करते हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा हो जो कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि हम अपने जो इको फ्रेंडली टारगेट्स हैं उनको तो अचीव कर लें, बट हमारे जो कंज्यूमर या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ना हो रही हो। सो इस सूरत में हमने जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी साथ साथ लुक आफ्टर करनी है। So, considering green design as a business strategy to maximize economical and environmental returns by adoption of innovative pollution prevention techniques, green design, sustainable design seeks to meet consumer demand. Uh, and then without compromising the resource and energy supply for future generation. So sustainable भी होगा हमारा डिज़ाइन और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी होगा। कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें मटेरियल सिलेक्शन आएगी, प्रोसेस एंड फैसिलिटी डिज़ाइन आएगा, मार्केटिंग आएगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, वेस्ट डिस्पोजल आएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जा रही हैं, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर रही हैं, एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर रही हैं। अब इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं? स्ट्रेटजीज़ फॉर ग्रीन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, एंड देन प्रोडक्ट यूज़फुल मटेरियल विद पोटेंशियल एनर्जी, लाइफ टाइम ऑफ प्रोडक्ट ये हमें मिलेगी फ्रॉम दी लाइफ साइकिल असेसमेंट से। और क्या चीज़ हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करते हुए? ड्यूरेबिलिटी, रिसाइकलेबिलिटी एंड मटेरियल कंपोजिशन। देन ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं सारी की सारी। आप जितने नाम पहले मैंने लिए, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, टेलीफोन्स, अप्लायंसेस, सब के अंदर आप देखिए कितनी ड्रास्टिक चेंजेस अकर कर रही हैं। हमारा सारा निज़ाम जो है वो पहले ह्यूज स्ट्रक्चर्स के ऊपर कंस्टिट्यूट करता था, अभी वो सारे का सारा जो है वो लो कास्ट की तरफ, लो यूज़ की तरफ और ड्यूरेबिलिटी की तरफ और लाइट वेट की तरफ चला गया। अब हमारे मोबाइल फ़ोन्स कितने एफिशिएंट हो गए एंड एट द सेम टाइम कितने शॉर्ट हो गए, कितने स्मॉल स्ट्रक्चर्स अब हमारे मोबाइल फ़ोन्स के हैं। सो ये एग्जांपल सारे आपके सामने हैं, आप उनको बड़ी इजीली जो है वो जज कर सकते हैं कि इसमें सस्टेनेबिलिटी का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। एंड देन आप इनको सारे को गो थ्रू कीजिए प्लीज़। वी हैव प्रोडक्ट डिज़ाइन एज वेल हेयर। उसमें ये है कि हमारे स्टेप्स कौन कौन से हैं। न्यू कंसेप्ट डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कन्वेंशनल की बजाय न्यू कंसेप्ट को प्रमोट करें, न्यू कंसेप्ट्स लेके आएं। कंज्यूमर रिक्वायरमेंट हमारा टारगेट है कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की वो फुलफ़िल करें, लेकिन उसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रोडक्ट को हम सेम रखें। हम उसमें बहुत सारी इनोवेशंस कर सकते हैं, हम उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन्स की एग्जांपल लें, कहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड हाउ वी कम्प्लीटली मॉडिफाइड द कंसेप्ट ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। अब हम सिर्फ जो क्लोथ्स हैं उनको एक दफ़ा मशीन के अंदर एंटर करते हैं एंड इन द एंड वी गेट ओनली वेरी क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ्स ऑन फ्रॉम द अदर साइड। सो ये देखें कितनी एडवांसमेंट है इसमें इसमें कितने ज़्यादा प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व थे वो सब के